देखिए बेटा, एंड यू नो रियल नंबर्स, राइट? यस सर। ट्रांसेंडल नंबर्स, वो सारा छोड़ दीजिए, इरेशनल नंबर्स का टाइप्स है वो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, ओके? वो सारा मेन नहीं है। इमेजिनरी नंबर्स। हाँ, देखिए, अभी तक जो आप क्लास 10th में हो या 8th में हो, जो भी क्लास में हो आप, these are the basic number systems that you know. The biggest number system that you know is real numbers till class 10th, okay? yes sir. So we are going to introduce a new set of numbers called complex numbers. ये complex numbers जो है ये real number set से भी बड़ा set है, okay? So to understand what complex numbers are, so let us try to understand what numbers are. So let us try to understand numbers. So what are numbers? If I ask you what numbers are, what is your answer? So first, Any numerical value. Any numerical value. Okay, good. Or any other understanding? How do we think of numbers? So numbers are symbols to represent quantities, yes or no? Yes sir. Yes sir. Different physical quantities बोल सकता हूँ? Yes sir. Yes sir. Yes or no? Okay. But if I say numbers are symbols to represent different physical quantities, आपको ऐसा लगेगा कि फिजिक्स पहला है, इसके बाद मैथ्स आया, राइट? Yes sir. यूजुअली क्या होता है, मैथमेटिशियंस डू नॉट थिंक अबाउट फिजिक्स। यूजुअली क्या होता है, मैथमेटिशियंस अपने दुनिया में होता है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिशियंस देते हैं वो बाद में फिजिक्स में यूज होता है यूजुअली, ओके? Yes sir. सो मैथमेटिक्स में वी डोंट टॉक अबाउट फिजिकल थिंग्स, वो बाद में आएगा, क्लियर है? दे माइट बी यूजफुल इन फिजिकल सिचुएशंस। Yes sir. Okay, so mathematics में one way to think of numbers is numbers are solutions of equations. Different physical situations can be thought of as equations. Equations का मतलब पता है ना, right? Yes sir. यस सर। Yes sir. तो आपको numerical questions होते हैं ना, you have numerical questions. Numerical Yes, questions में आपको एक physical situation मिलेगा, right? Yes sir. Yes For sir. example, Ravi has 3 chocolates. This is a physical situation, is all. Yes sir. Ravi and Chetan combinedly has 7 chocolates, right? Yes sir. Find the number of chocolates that Chetan has. A physical situation है ना, ऐसा ना? बहुत simple question है. But what we are trying to understand is that this is a physical situation, This right? question we have to write. हाँ, जो भी लिख रहा हूँ थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि बाद में यूजफुल होगा। सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा ना एक बार प्लीज। हाँ सर, देख लिया मैंने। So first, can you see that this is a physical situation? एक situation है। इस situation को आप एक equation से represent कर सकते हैं, सर? What is the equation corresponding to this situation? 3 plus x is equal to 7 है, सर? Yes, चेतन के पास जो number of chocolates है उसको हम x मान रहे हैं, and रवि एंड चेतन combinedly का मतलब प्लस है, ऐसा? सो 3 plus x is equal to 7, इसको सॉल्व किया तो x is equal to 4 आ रहा है, राइट? yes sir. So this 4 is a number. Yes. So once this 4 is a number, ये नंबर का नेचर हम समझने के लिए कोशिश करते हैं. So we have put this 4 in the set of natural numbers, ऐसा ना?
Yes, sir. Yes, sir. We have put this in the set of natural numbers. क्लियर? वैसा ही अलग अलग इक्वेशंस का आंसर्स अलग अलग आते हैं एंड बेस्ड ऑन द नंबर्स दैट यू गेट, द आंसर्स दैट यू गेट, whatever answers you get, those can be thought of as numbers. Okay, first में क्या है? First you have only counting numbers. Starting में you used to have only counting numbers. ऐसा ना? Counting numbers are 1, 2, 3. These are very easy to understand, right? Yes, sir. इसके बाद someone has asked the question. ठीक है, रवि के पास 3 चॉकलेट है. ओके, रवि के पास 3 चॉकलेट है. रवि एंड चेतन कंबाइन होने के बाद भी आपके पास 3 ही चॉकलेट है फॉर एग्जाम्पल. इसका मतलब x कितना है? 0. 0. सो इसका मतलब 0 भी एक नंबर है. Yes. जीरो तो नेचुरल नंबर्स में है नहीं. 0 इज नॉट ए काउंटिंग नंबर. नहीं सर. Yes. सो व्हाट इज द लॉजिकल कंक्लूजन? 0 इंक्लूड करके मैं एक नया सिस्टम बनाऊंगा. Whole number. अच्छा, whole numbers. Whole numbers. सब. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद सोच कैसा हुआ? मतलब मान लीजिए x प्लस 5 इज इक्वल टू, मान लीजिए एक इक्वेशन 4 है. ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है. सो वी से दैट यू हैव 0 रुपीज विथ यू. ऐसा? Yes, sir. मान लीजिए आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है और आप किसी और से 1000 रुपए ले लिया. ओके, आपके पास कितना पैसा है अभी? 1000 रुपए. नहीं, एक्चुअली देखा तो यू डोंट हैव 1000 रुपीज, यू हैव 0 रुपीज. -1000. नहीं, एक्चुअली यू हैव 0 राइट नाउ, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है ना, वो तो लोन में है, वो तो देना पड़ेगा ना. Yes, सर, sir. दोस दैट मनी इज नॉट योर मनी, राइट? आप दूसरे से लेके रख लिया. ओके, मान लीजिए वो खर्चा कर लिया आप. आपके पास कितना पैसा है? -1000. अब आपके पास 0 नहीं है. 0 का मतलब आपके पास 1000. 0 है और कुछ लोन नहीं है. आप 1000 लेके खर्च भी कर लिया, इसका मतलब यू आर बिलो 0, राइट? Yes, sir. तो x प्लस, अब आपको 1000 रुपीज अगर आप कमा लिया तो इफ यू हैव अर्न 1000 रुपीज, इसके बाद आपका वर्थ जो है वो 0 होगा, राइट? 0. Yes, sir. हाँ Yes, सर. sir. इसका मतलब x is equal to -1000, right? Yes, sir. That means you Yes, have sir. thought of some numbers which are not positive numbers. अगर x plus 1000 is equal to 0 does not have a solution in whole numbers, right? Yes, sir. So we need to think of a new system which can include this number. That system is nothing but the set of integers. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Are these numbers sufficient? So there are some physical situations where integers are also not sufficient. Okay? मान लीजिए 3 लोग मिलके एक रोटी खाए हैं. 3 लोग मिलके एक रोटी खाए हैं. So what is the amount eaten by each person? 1/3. 1/3. ये नंबर जो है, ये नंबर अभी तक जो सिस्टम्स हम डिस्कस किए हैं उसमें नहीं है ना 1/3. No, sir. सो 1/3 को इंक्लूड करने के लिए एक नया सिस्टम चाहिए. ऐसा Yes, we sir. need rational numbers. First fraction सोच सकते हैं. You can think about fractions. एक बार फ्रैक्शन सोचने के बाद कुछ नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं. Yes, sir. So positive Yes, sir. fractions and negative fractions come in the set of rational numbers. Okay. Yes, sir. Yes. So rational numbers is a very big set of numbers, right? Yes, sir. ये बहुत देर तक लोग ने क्या सोचा है, रैशनल नंबर्स आर द ओनली नंबर्स दैट आर प्रेजेंट. ये पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिशियन है. नो पाइथागोरस पॉजिटिव नंबर हो सकता है क्या है बेटा? सर, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर हो सकता है. हाँ, इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, है ना? Yes, sir. So there used to be a mathematician called Pythagoras, बहुत famous mathematician, right? Yes, Okay. He used to say that God knows only integers. He used to say that God knows only
इंटीजर्स। इसका मतलब है जब भी भगवान कुछ बनाते हैं, एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड, राइट? Yes, sir. ठीक है। सो जो भी क्वांटिटीज गॉड बनाते हैं, all those quantities can be expressed in terms of integers. This is what Pythagoras used to think. भगवान का सोच नहीं है ये पाइथागोरस का सोच है। सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जिनका दही है इसको ले दही। Yes, sir. ओके, ये कंफ्यूज मत हो जाइए, गॉड ने नहीं बोला, ये कौन बोला? पाइथागोरस ने बोला। Pythagoras. So Pythagoras used to think that God knows only integers. इसका मतलब है उसने सोचा है गॉड के पास एक स्केल है जिसका लेंथ 1 यूनिट है, एंड गॉड को इसको God only knows how to divide this into some number of parts. इसका मतलब है, मान लीजिए आपके पास अपना फिंगर है, देखिए ये हाथ है ना, इसका डायमेंशंस डिसाइड करना है ना भगवान को। सो व्हाट पाइथागोरस यूज्ड टू थिंक इज, ठीक है, गॉड के पास एक स्केल है, ओके, इसको क्या किया, आधा किया, इसको उसका लेंथ जो भी है उतना लेंथ यहां से यहां तक कर लिया, ये बोन का लेंथ इतना लिया, राइट? इसको डबल किया, इसका लेंथ आ गया, ये दोनों को ऐड किया, ये वाला लेंथ आ गया। समझ रहे? सर ये कैसा कंसेप्ट है सर? ये सही है? नहीं, सही नहीं है, ऑब्वियसली गलत है ना, बट पाइथागोरस यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। पाइथागोरस यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। पाइथागोरस का बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। So whatever Pythagoras used to say, many people used to believe it. Okay. So Pythagoras used to think that there are only rational numbers. Sure. And one of the disciples of Pythagoras that there is a number which is not rational. Pythagoras का एक disciple है, उसने प्रूव किया कि there are some numbers which are not rational. For example, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आपको? Sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका लेंथ 1 है, दूसरा लेंथ भी 1 है, ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना होगा? रूट 2 है ना? Yes, sir. So one of the disciples of Pythagoras have proved that root 2 cannot be expressed as P by Q. कैसे प्रूव किया वो भूल जाइए आप, but somehow he has proved this. अगर रूट 2 को आप P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ओके, इसका मतलब पाइथागोरस के हिसाब से what are the conclusions? पाइथागोरस के हिसाब से कंक्लूजन ये होना चाहिए कि गॉड को इंटीजर्स के अलावा और कुछ पता होना चाहिए सर, बिकॉज रूट 2 इज नॉट मेड ऑफ इंटीजर्स। Yes, sir. Yes. अगर भगवान को इंटीजर्स के अलावा कुछ पता है तो इसका मतलब पाइथागोरस गलत है, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. सो आप पाइथागोरस के शूज में जाके सोचिए, विल यू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग? No. No, sir. ये बहुत बढ़िया बड़ा आदमी है ना पाइथागोरस। सो व्हाट डू यू थिंक, डिड पाइथागोरस एक्सेप्ट दैट ही इज रॉन्ग? No, sir. नो। सो व्हाट डिड ही डू? प्लेस लेకుండా చేసి क्या किया उसने? देखिए ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही है, अपना थ्योरम से ही अपना बात गलत प्रूव हुआ, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सो स्टोरी सेज दैट पाइथागोरस ने इस डिसाइपल को मरवाया, he The has, name of the disciple. ये आप गूगल में सर्च कर लीजिए बेटा, ठीक है, ये स्टोरी तो बहुत फेमस है, गूगल में मिल जाएगा। Hippocrates or something like that. हिप्पोक्रेटस ऐसा कुछ नाम है उसका, ओके। Sir, means Pythagoras अच्छा नहीं था. वो मुझे पता नहीं बेटा, ठीक है, अच्छे लोग भी बुरा काम करते हैं ना कभी कभी। सर हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा भविष्य में, तब पता चलेगा। हाँ ठीक है, दैट इज हिस्ट्री, कौन सा वर्जन में कितना सच है वो हम
ये नहीं कर सकते ना, वेरीफाई नहीं कर सकते ना। डिसेबल को मार दिया था। डिसेबल को मार दिया एंड ही हैज सप्रेस दिस ट्रूथ। ये रूट 2 के बारे में जो नॉलेज है वो बहुत दिन तक सप्रेस किया गया है। ठीक है, पाइथागोरस के बाद लगभग बहुत साल के बाद दिस irrationality of numbers have come out, the concept of irrationality. Okay, ये सब कुछ पर तो पाइथागोरस थ्योरम तो उन्होंने ही तो प्रूव किया था। उन्होंने प्रूव किया, बट समथिंग हैज हैपेंड हियर। ओके, बट ये जो irrationality of numbers जो है उसके बारे में वो सप्रेस किया गया है। ठीक है, so after a long time people have started investigating irrationality and they have come out with a new set of number system called irrational numbers. Okay, Yes, sir. तो पता है irrational numbers का मतलब क्या है, बट इतना अभी क्या है, you are being taught about irrational numbers, right? आप irrational numbers बहुत easy लग रहे हैं, but there was once a time when people did not accept these irrational numbers. Okay, so अगर irrational numbers के बारे में सोचना है, you can think of equations like this: x square equal to 2. You have some equation like this. So what is the, देखिए बेटा ठीक ठाक है यहाँ से। सर क्लियर है। अगर if you consider an equation x square equal to 2, what is the solution of this equation? Sir, root 2. x equal to root 2 है ना? तो So ये solution को Equals to root 2. this solution cannot be present in the set of rational numbers. Okay, so we needed a new system which is called irrational numbers. मतलब ऐसा करके धीरे धीरे अलग अलग इक्वेशंस को ऑब्जर्व करके मैथमेटिशियंस हैव कम आउट विद डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स. ओके, Yes, sir. अगर सारा इक्वेशंस सॉल्यूशंस अगर इजी सेट्स में है तो देयर वाज नो नीड टू गो फॉरवर्ड, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. And once you have rational numbers and irrational numbers, okay, there are mathematicians called Cantor and Dedekind. क्या है mathematicians का नाम? Cantor and Dedekind. Dedekind. Okay, ये दोनों प्रूव किया कि rational numbers plus irrationals, Real numbers. ये दोनों मिलके रियल नंबर्स बन जाएगा. ठीक है? Yes, sir. So what they have proved is, देखिए ये बहुत ऑब्वियस नहीं है, रियल नंबर्स में रैशनल्स होते हैं, इरेशनल्स होते हैं ना, ये तो पता है ना आपको. Yes, sir. Yes, sir. बट क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता हूँ मैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के अलावा और कुछ हो सकता है रियल्स में? The real numbers. Yes, sir. रियल नंबर्स में ये तो पता है कि रैशनल्स एंड इरेशनल्स तो होता है रियल नंबर्स में, राइट? Yes, sir. बट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना मैं, रैशनल एंड इरेशनल के अलावा और भी कुछ नंबर्स होता है रियल्स में? Sir, no. No, sir. So this has been proved. This has been proved by these two mathematicians. समझ आ रहे? Yes, जो sir. आप नो बोल रहे हैं वो नो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं आप तो नहीं प्रूव नहीं किया ना. Yes, sir. Yes, Proved. sir. Yes, बट ये आप दिस इज द नॉलेज दैट इट हैज बीन प्रूव्ड. आपका जो कंक्लूजन है वो सही है. ओके, सो दिस इज हाउ नंबर सिस्टम्स हैव डेवलप्ड. समझ आ रहे हो नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे जाएंगे. Yes, Yes, sir. sir. Now there is a standard equation. ठीक है, बहुत पहले से एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है which is x square plus 1 equal to 0. Okay, this is a very simple equation, x square plus 1 equal to 0. X equals to I. इसका सोल्यूशन है x square equal to -1 होता है ना. Yes, sir. तो बहुत साल तक मैथमेटिशियंस ने क्या सोचे है, मेरे पास रियल नंबर्स है, राइट? Yes, sir. मेरे पास अभी तक रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मुझे पता है कि स्क्वायरिंग करने के बाद पॉजिटिव नंबर्स भी आंसर पॉजिटिव देगा, नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर किया तो भी आंसर तो पॉजिटिव आएगा ना,
ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. सो कोई भी रियल नंबर को स्क्वायर करने के बाद -1 तो कभी नहीं आएगा, ऐसा ना? No, sir. No, sir. Yes. So many mathematicians thought that this is a meaningless equation. समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay, आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं x² इक्वल टू -1 है तो x इक्वल टू i। Yes, sir. कोई बोला ना, वो जो नॉलेज है, वो नॉलेज जो है वो इतना इजीली नहीं आया। हाँ, समझ में आ रहे हैं? आपको तो कोई बोला होगा इसलिए आप बोल रहे हैं, ऐसा ना? Many famous mathematicians have thought that this is a meaningless equation. इंडिया में बहुत फेमस मैथमेटिशियन का नाम क्या है? रामानुजन। रामानुजन तो रीसेंट है, उससे पहले आर्यभट्टा का नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत फेमस मैथमेटिशियन सोचता है ना, ये हम और आप सबसे शायद थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा ये, Yes, sir. Yes, sir. हुआ ना शायद, sir. वेरीफाई नहीं कर सकते बट शायद होगा। ओके, एंड इवन ही इन हिज बुक आर्यभट्टिया, एक बुक है इसका, क्या है? आर्यभट्ट। इस बुक में इस इक्वेशन के बारे में मेंशन है, एंड इवन ही थॉट दैट दिस इक्वेशन इज मीनिंगलेस। ओके, समवेयर अराउंड 15th सेंचुरी, आर्यभट्टा जो है 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी के आसपास है। ओके, बाद में 15th सेंचुरी के आसपास एक मैथमेटिशियन आया जिसका नाम लेनार्ड ऑयलर, बहुत फेमस मैथमेटिशियन। Yes, sir. नाम क्या है? लेनार्ड ऑयलर। ओके, Yes, sir. ये बहुत ठीक है, जब ये डिस्कवरी किया उसका एज बहुत ज्यादा नहीं है, 16-17 ईयर्स में। ओके, अगर आपका एज कितना है? The 14. 14 है ना, मतलब आपसे 3 साल बड़ा है, कितना है? ठीक है, आपसे 3 साल बड़ा है। So he has thought about this equation x² + 1 = 0. उसका मैथ्स टीचर बोला है कि ये इक्वेशन मीनिंगलेस है, क्योंकि उस समय कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सर एक बार ऊपर का दिखाएगा सर? इतना ही। ओके सर, ओके सर। ओके, सो ऑयलर का टीचर्स भी बोला है ये इक्वेशन कुछ सॉल्यूशन नहीं देते हैं, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ऑयलर जो है he has not believed in their teachers. So क्या किया उसने? ओके, x² + 1 = 0 तो x² = -1 होगा। ओके, सो x is equal to square root of -1 होगा, ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Obviously this is not real, ऐसा ना? ऐसा रियल नंबर तो होता नहीं है। No, sir. sir. No, sir. So he has asked himself, why should I think that real numbers is the only biggest set of numbers? शायद और भी नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि there is nothing real about numbers for a mathematician. देखिए, रियल नंबर्स रियल होता है क्या? देखिए, 1 आप देख सकते हैं, कैन यू सी 1? No, sir. No, sir. देखिए, 1 इज जस्ट ए सिंबल। आपको लग रहा है कि देखिए ये कितना पेन है? इज दिस 1 पेन? Yes, Yes, sir. sir. ये 1 पेन है क्या? इज दिस रियली 1 पेन? Yes, sir. ठीक है, आप थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचा तो ठीक है, अभी आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन 2 times. ओके, इज दिस 1 पेन? यस, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. 3 सेकंड के बाद अभी एक और बार पूछ रहा हूँ, इज दिस 1 पेन? अगर मान लीजिए यस है आपका नाम, आपका आंसर यस है ना? Yes, sir. सो मैथमेटिकली 1 = 1 होना चाहिए। Yes, sir. Yes. Yes, sir. 1000 साल के बाद इज दिस 1 पेन? Yes, Yes, sir. sir. तो वो भी इक्वल होना चाहिए।
ये सारा पेन्स सेम रहेगा? Oh no, sir. ठीक है, इसमें तो दिस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, ठीक है, ये तो डिसइंटीग्रेट होते रहेगा, ऐसा ना? Yes, sir. नया डस्ट Yes, पार्टिकल्स sir. इसके ऊपर आते रहेगा, कुछ पार्टिकल्स निकलते जाएगा. yes, दिस इज अ डायनामिक थिंग, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इसको वन बोला तो मैथमेटिकली ऑल ऑफ दिस शुड बी इक्वल, ऐसा ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. बट यूनिवर्स में इज देयर एनीथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग? No, sir. No, sir. Everything is changing, right? ऐसा ना? yes, Yes, sir. So Yes, sir. in mathematics there is nothing real, even in the number 1, which is very obvious. There is nothing real about this number. This is just a symbol. समझ रहे? yes, sir. Yes, sir. This is just a symbol. ये मत सोचे कि 1 होता है. 1 is just a symbol used to represent some idea. Okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So x is equal to square root of 1. ये तो रियल नंबर तो नहीं है, बट ये भी एक सिंबल हो सकता है ना. There might be some numbers which this might represent, right? Yes, sir. So इसको ऑयलर ने बोला है मैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 को i बोलूंगा. ठीक है, I'll call it i. Okay? Yes, sir. I is a shortcut for iota. Okay? Yes, sir. Yes, sir. So this I is square root of -1. This is the basic unit of imaginary numbers. He has proposed a new set of numbers called imaginary numbers. समझ रहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसमें रियल नंबर्स के साथ साथ एक I का भी यूज होता है. ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, Yes. So Yes, sir. फर्स्ट में स्टार्टिंग में these numbers are called imaginary numbers. ओके, सो जैसा ऑयलर ने बोला है, imaginary numbers are numbers of the form a plus I times b, where a comma b are real numbers. समझ में आ रहा है? Yes, sir. For example, simple है, 2 plus 3 times I. 2 एक रियल नंबर है, 3 एक रियल नंबर है. एक रियल नंबर अपने से है, दूसरा रियल नंबर I से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ओके, Yes, sir. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए इमेजिनरी नंबर. क्लियर है? imaginary. हाँ सर क्लियर. Yes, 5 plus 7I. This is also an example of imaginary number. Imagine. Sir, all imaginary numbers are in this form only. हाँ, देखते हैं. pi plus root 2I. ओके, yes, sir. Yes, sir. क्लियर? देखिए, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, जस्ट रियल होना चाहिए. ओके, Yes, sir. Yes, sir. 5 by 3 minus 2I by 7. All these are called imaginary numbers. Okay? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, कभी कभी गलती से हाँ, दे. फर्स्ट वाला 0 plus 4I, is this also an imaginary number? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. 0 भी रियल है ना? हाँ, 5 plus 0I, is this imaginary? yes, sir. No. Yes, sir. Yes, sir. No. Yes, sir. This Yes, is sir. also an Yes, imaginary sir. number, Yes, क्योंकि Yes, sir. b जो है वो 0 हो गया, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you can see that this is nothing but 5 है ना? Yes, सर sir. पर जीरो से मल्टीप्लाई होके वो अल्टीमेटली जीरो नहीं हो जाएगा. हाँ, 0 हो रहा है, इसलिए 5 ही बच रहा है ना? 5 plus 0 is nothing but 5. ऐसा? Yes, sir. इसका मतलब सर क्या तो है? ये रैशनल नंबर होगा. हाँ, इसका मतलब है all real numbers are also Imaginary number. imaginary numbers. समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. इसका मतलब है imaginary numbers का जो सेट है वो रियल नंबर से भी बड़ा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And real numbers are nothing but
numbers where I is getting multiplied by 0, इतना है ना? Yes, sir. ये अगर b 0 है तो that will give you a real number, right? Yes, yes, sir. समझ में आ रहा है? So starting में क्या होते थे? People used to, जैसा ऑयलर ने सोचा है, he has given a name of imaginary numbers to this concept, okay? Yes, sir. Yes, sir. जैसा मैं आपको बोला था, ओके वैभव नॉट अंडरस्टैंडिंग। वैभव बेटा क्या दिक्कत है, कुछ बोल सकते हैं? सर ये आई वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा। अभी तक मैं कुछ बोला नहीं, आई का जहां तक मैं बोला था वहां तक समझ में नहीं आया। जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है वो तो रियल नहीं है ना? No, sir. सो ऑयलर ने सोचा है स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैं आई बोलता हूँ, बोल सकता हूँ, मेरा मर्जी है ना, बिकॉज नंबर्स आर जस्ट सिंबल्स, राइट? Yes, sir. तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैं आई बोलूंगा, मैं बोल सकता हूँ क्या नहीं ऐसा? Yes, sir. हाँ सर। सो दिस इज नॉट ए रियल नंबर, सो उसको कुछ नाम देता हूँ, मैं उसको इमेजिनरी नंबर बोलता हूँ। कैन आई से दिस? Yes, sir. एंड जैसा x स्क्वायर इक्वल टू -1 का आई सोल्यूशन आया, बट हर बार इतना इजी इक्वेशन होने का जरूरत नहीं है ना, अलग अलग इक्वेशंस हो सकते हैं ना, ऐसा ना? मान लीजिए एक्स स्क्वायर और x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या होगा? x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, राइट? Yes, sir. x प्लस 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, Yes, x sir. इज इक्वल टू -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा, Yes, sir. दैट इज इक्वल टू -2 प्लस i। Yes, sir. Yes, ये भी रियल नंबर नहीं है ना, No, sir. तो ये भी इमेजिनरी नंबर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर Yes, sir. इफ थिंक ऑफ योरसेल्फ एज ऑयलर, आपके हिसाब से ये भी इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. सो जो भी थ्योरी आप प्रपोज करते हैं थोड़ा सा जनरल होना चाहिए ना, सिर्फ एक इक्वेशन के लिए थ्योरी प्रपोज करिएगा, No, sir. ऐसा प्रपोज करना है कि जो थोड़ा सा ज्यादा केसेस में काम करे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो व्हाट ऑयलर हैज प्रपोज्ड इज सिर्फ आई होने का जरूरत नहीं है, आई के साथ कुछ नंबर हो सकता है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ और नंबर अलग सा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका आंसर कैसा आएगा? x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आएगा, Yes, सो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -2 आएगा, राइट? Yes, sir. ये -2 को स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकता हूँ। प्लस 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर सर वहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होगा सर। हाँ सर, होल स्क्वायर नहीं होगा ना उधर। होल स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर इस तरफ चला गया ना, स्क्वायर रूट ऑफ -2 को स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकता हूँ, यस यस क्योंकि आपको पता है ना रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, यस सर तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो आई है ना, ये तो रूट 2 टाइम्स आई हो गया, यस सर सो x इक्वल टू क्या है? -3 प्लस रूट 2 टाइम्स आई, यस सर ये भी इमेजिनरी नंबर ही है ना। यस सर सो ऐसा कुछ थ्योरी बनाना पड़ेगा मुझे जिसके साथ मतलब जिसको यूज करके मैं सारे नंबर्स को एक्सप्रेस करूं, ऐसा ना? Yes, sir. तो इसलिए अगर आप है तो आप क्या करिएगा, यही करिएगा या कुछ और करिएगा? आप भी यही करिएगा ना, यस प्रपोज इमेजिनरी नंबर्स एज a plus ib, not just i, ऐसा भी मतलब अलग अलग तरीके का इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं, राइट? यस सर एंड इसके बाद एक अच्छा चीज निकला है कि even if a number is real, it is a subcase of imaginary numbers. Imaginary. इसका मतलब आपको समझ में आया, इमेजिनरी नंबर्स आर स्टिल बिगर सेट ऑफ नंबर्स, यस सर रियल नंबर्स से भी बड़ा सेट है, राइट? यस सर क्लियर है? Yes. यस सर Yes, sir. सो ये क्या है, ये स्टार्टिंग में ऐसा सोचा गया है, बट बाद में जैसा मैं बोला था, इज देयर एनीथिंग रियल अबाउट रियल नंबर्स? नो सर No, sir. सो अगर मैं इसको जो नॉर्मल नंबर्स को रियल नंबर्स बोल के इसको इमेजिनरी नंबर्स बोला तो आपको माइंड में क्या आइडिया आएगा? आपको ऐसा आइडिया है कि रियल नंबर्स असली में होता है, इमेजिनरी नंबर्स असली में होता नहीं है, ऐसा आइडिया आएगा ना आपको?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. that's not a good idea ऐसा Yes, sir. गलत कंसेप्शन हो जाएगा ना sir. इसलिए हाँ सर इसलिए लेटर स्टेजेस में इसका नाम जो है नाम चेंज किया गया है इमेजिनरी नंबर्स का जो नाम है वो चेंज किया गया है द नेम हैज बीन कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स समझ रहे Yes, दोनों sir. सेम चीज है हाँ दोनों सेम चीज है बट पहले इमेजिनरी नंबर्स बोला जाते थे पहले में स्टार्टिंग स्टेजेस में आफ्टर दैट क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स बोला तो बहुत लोग को गलत आइडिया आ रहा है इसके बारे में नंबर्स के बारे में इसलिए द नंबर्स द नेम हैज बीन चेंज टू व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है इट्स डिफिकल्ट है ना चलो Yes. so these numbers are slightly more difficult than normal real numbers इतना ही है there is nothing imaginary about this clear Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो स्टार्टिंग वाला जो इमेजिनरी का जो नाम है ठीक है वो पूरा गायब नहीं करवाया ठीक है इट हैज बीन इसको एक सब नेम दिया गया है जैसा कि देखिए मैं यहाँ तक समझ में आया Yes, sir. Yes. सो नोट किया पूरा Sir. यहाँ तक नोट किया Yes, sir. so let me go to the next page सर थोड़ा नीचे कीजिए shall I go to the next page यस सर Yes, sir. यस सर Yes, sir. Sir. नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. सो राइट नाउ अभी इस डेट में देखिए थ्योरी कैसा है द नंबर्स दैट आर प्रपोज्ड आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ तक समझ में आया Yes, sir. Yes, sir. so complex numbers will be of the form a plus I times b okay Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. where a comma b belongs to real numbers देखिए ये सिंबल है belongs to देखिए ऐसा एक कर्व्ड ई है कैपिटल ई को थोड़ा सा स्मूथ किया गया है ओके Yes. सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू एंड एग्जांपल्स हम देखे हैं सर वो वाला है सर सर Yes. बी और आर का मिडिल में ये वाला सिंबल है ये बिलोंग्स टू का Yes, sir. Yes, It's sir. called a complex number. Complex number is usually denoted by Z. Okay, Z is a complex number. सर बिलोंग्स टू के बाद क्या लिखें सर? Real numbers R. R is a set of real numbers as well. Yes, sir. Yes, सर sir. जेड को तो इंटीजर बोलता है ना सर नहीं नहीं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को Z नहीं बोलते हैं यूजुअली कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ लेट Z be a कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा यूजुअली रियल नंबर्स में लेट X be a रियल नंबर बोलते हैं ना यूजुअली Yes, sir. लेट X be a रियल नंबर लेट Y be a रियल नंबर बोलते हैं ना वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप Z लेते हैं यूजुअली लेट Z be a कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट को आप C से रिप्रेजेंट करते हैं C is a set of complex numbers okay Yes, sir. Yes, sir. so let Z be a complex number A plus IB okay ओके सर. Yes, sir. Yes, sir. so this A जो A है जो अकेला है I के साथ नहीं है A is called real part of Z समझ रहे A is called the real part B is called the imaginary part देखिए यहाँ जो है ये imaginary का जो नाम है वो रिटेन किया गया है real part of Z imaginary part of Z क्लियर है Yes, sir. Yes. Yes. डिनोट करते हैं RE of Z is equal to A EM of Z is equal to B clear real part of Z is A imaginary part of Z is B clear Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. if
real part of z is equal to 0, then z is called. If imaginary part of z equal to 0, then z is called. दो नाम है, देखें एक एग्जाम्पल देखें. एक 2 + 3i है, इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, राइट? Yes, sir. What is real part of z? 2. 2. What is imaginary part of z? 3. Okay, clear है? Yes, sir. मान लीजिए एक सर z फिर है. ऊपर वाला पार्ट बता देंगे सर फिर से. सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर. देखिए अगर z a + ib है तो this a is called the real part, कि i के साथ नहीं है ना ये. b is called the imaginary part, जो i के साथ है वो imaginary part बोलते हैं, राइट? Yes, sir. सो अगर 2 + 3 है तो रियल पार्ट भी नॉन जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी नॉन जीरो है. मान लीजिए z is 5, ये तो रियल नंबर ही लग रहा है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, सो 5 का मतलब 5 + 0 है ना. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 5. 5. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? 0, 0. 0 I. तो अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है तो ये तो रियल नंबर ही हो गया. Yes, sir. So if imaginary part of z equal to 0, z is called purely real. सर समझ नहीं आया सर. एग्जांपल. Okay, देखिए फिर लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर z 2 + 3i है तो ये 2 जो है वो रियल पार्ट है, 3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो अगर फॉर एग्जांपल z is 3, ये तो प्योरली रियल नंबर है ना, राइट? Yes, sir. इज अ रियल नंबर. बट Yes, sir. बट इफ यू थिंक ऑफ इट एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप 3 + 0i लिख सकते हैं. 0 I. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z is 3, imaginary part of z is. 0. So that means if the imaginary part is 0, किसी का साउंड आ रहा है बेटा, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जिसको जहां से साउंड आ रहा है. कहीं से डिस्टरबेंस आ रहे हैं. किसका डिस्टरबेंस आ रहा है? ओके, देखिए श्रीजिता, स्वागत, म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है. स्वागत माजी, म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए जब बात नहीं कर रहे, डिस्टरबेंस आ रहे हैं. ओके, सो इफ z is equal to 3, this can be expressed as 3 + 0i. रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है. सो जिस नंबर्स का, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, दैट मीन्स द नंबर इज प्योरली रियल. Yes. Yes. Yes, sir. So if imaginary part of z is 0, then z is called purely real. Okay. Real. Purely real. Yes, sir. Yep. So मान लीजिए z is equal to 5i. इसका मतलब 0 + 5i है ना, क्योंकि रियल पार्ट कुछ है नहीं इसका. Yes, sir. Yes, sir. Real part of z equal to 0. Yes, sir. Imaginary part of z is 5, right? Yes, sir. So अगर real part of z 0 है तो then the complex numbers will look like this. Yes, sir. Such numbers are called purely imaginary. समझ रहे? Yes, sir. So ये imaginary नाम जो है इस केसेस में रिटेन किया गया है. बाकी हर जगह हम complex numbers वर्ड यूज करते हैं. ओके, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है बेटा? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट दोनों उल्टा है. क्या है? हाँ, उल्टा है ना. रियल 0 है तो प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी नहीं है तो रियल, रियल नहीं है तो इमेजिनरी, इमेजिनरी नहीं है तो रियल. ऐसा. सर एक बार ऊपर से दिखाइएगा प्लीज. सर कुछ पार्ट्स बीच में छूट गया है.
सर प्योरली इमेजिनरी समझ में नहीं आया। ऐसा नंबर्स को सिर्फ 5i है, रियल वाला कुछ नहीं। ऐसे नंबर्स को हम प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। सर सर इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हुआ हम लोग उसको रियली जो रियल बोलते हैं, तो सर हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कह सकते? देखिए वही बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए सुपर सेट। जैसा रैशनल एंड इरेशनल जो है दोनों रियल नंबर्स में ही होता है ना, यस सर। वैसा रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता है। यूजुअली सेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर सारा नेचुरल नंबर्स को एनक्लोज करते हैं, राइट? यस सर। इंटीजर्स और ऐसा होता है, इंटीजर्स। यस सर। यस सर। यस सर। इससे और बड़ा है रैशनल नंबर्स। यस सर। इरेशनल नंबर्स पूरा अलग है। चलो यस सर। यस ये दोनों मिला के क्या होता है? दोनों मिला के नंबर। रियल नंबर्स है। अब इससे ये सारा, हाँ सर नेचुरल नंबर, फिर उसके ऊपर होल नंबर, उसके ऊपर इंटीजर, उसके ऊपर क्या लिखे? क्यू, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद इरेशनल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल मिला के रियल नंबर्स हो गया। यस ये सर। पूरा रियल नंबर्स के साथ और भी नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब सारा रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स में आएगा। यस यस सर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सबकेस रियल नंबर्स। द कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर इमेजिनरी पार्ट इज 0 is the set of real numbers. Okay? यस सर। यस सर। यस सर। Okay. नेक्स्ट पेज में जाओ। यस सर। वेन डायग्राम है क्या? क्या है बेटा? क्या है? ये कोई वेन डायग्राम टाइप का है क्या? वेन डायग्राम, हाँ वेन डायग्राम जैसा है। तब मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, हाँ सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। ये 5, ये 3 जो है, ये 3 भी कॉम्प्लेक्स है ना। 3 तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, यस सर। यस सर। रियल नंबर भी है, सब कुछ है। यस सर। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। यस सर। Yes, sir. यूजुअली मैथ्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रपोज कर सकते हैं, बट इट शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है अपना थ्योरी मान लीजिए यूज करते हैं। एज्यूम दैट यू हैव प्रपोज्ड ए न्यू थ्योरी। फॉर एग्जांपल ऑयलर ने क्या बोला है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई बोला है, राइट? Yes, sir. इतना बोलने से होता नहीं। He has to make sure that जब भी आप नंबर्स को प्रपोज करते हैं, you also have to give methods to do various operations on these numbers. For example, रियल नंबर्स के ऊपर, रियल नंबर्स पे आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सब बहुत सारा ऑपरेशंस कर सकते हैं। यस सर। ये सारा डिफाइन किया गया है ना। एडिशन, रियल नंबर्स में एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, वैसा डिफाइन किया गया है ना। वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आप जो नेचुरल नंबर्स में जो प्रपोज किया, सेम ऑपरेशंस आप रियल नंबर्स तक कर सकते हैं ना। देखिए नंबर सिस्टम चेंज हुआ, नंबर सिस्टम चेंज हुआ, बट ऑपरेशंस करने का तरीका चेंज नहीं हुआ ना। नो सर। No, sir. नो सर। सो ऑयलर ने बोला है कि जैसा हम नॉर्मल रियल नंबर्स पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, जैसा ऑपरेशंस का मतलब प्लस, माइनस, इनटू, सब्ट्रैक्शन जो भी है, वो इमेजिनरी नंबर्स में भी सिमिलरली कर सकता है क्या नहीं? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? यस सर। सो मान लीजिए ऑयलर बोल देते हैं कि जो भी रियल नंबर्स का प्रॉपर्टीज है वो सारा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल ही हैज प्रपोज्ड दैट। इसके बाद क्या करते हैं, दे मैथमेटिशियंस ट्राई डिफरेंट ऑपरेशंस।
इसके बाद कभी आपको पैराडॉक्सिकल रिजल्ट्स नहीं आना चाहिए। पैराडॉक्सिकल का मतलब है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं ऑपरेशंस किया, गलती से 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ हो गया, फॉर एग्जांपल, समझ रहे? फॉर एग्जांपल 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ हो गया कहीं से, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस में कुछ ना कुछ गलती तो होगा ना, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2 इज ए पैराडॉक्सिकल रिजल्ट, वो तो गलत रिजल्ट है ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज करके 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव कर लिया, इसका मतलब क्या है, 1 इज इक्वल टू 2 सही है या आपका प्रोसेस गलत है? प्रोसेस गलत दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। 0 निकला था एक बार। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं, राइट, प्रोसेस में। Yes, sir. Yes, sir. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। आप कोई भी मेथड से आप पैराडॉक्सिकल रिजल्ट्स, यू शुड नॉट बी एबल टू डिराइव पैराडॉक्सिकल रिजल्ट्स, समझ रहे? Yes, sir. और एक बार समझा सकते हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैथ्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप एक्सेप्टेड मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके आप अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट्स डिराइव नहीं होना चाहिए, समझ रहे? Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. एक्सेप्टेड मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके आप अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट्स डिराइव कर पा रहे हैं, इसका मतलब है वो ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं गलती है। You have to go back and check where the mistake has happened, समझ रहे? Yes, sir. So Euler भी अलग अलग ऑपरेशंस जो रियल नंबर्स पे यूज करते हैं, वो सारा ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करके देख रहा था, एंड he has found one contradiction. He has found a contradiction. ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको ओवरकम करने के लिए Euler has done something. वो कॉन्ट्रडिक्शन है, Euler was able to prove that 1 is equal to -1. So let us see how Euler has proved 1 is equal to -1. Okay? Yes, sir. So I is equal to square root of -1 है ना? Yes, sir. इसका मतलब I square कितना है? -1 है ना? -1. चलो, Yes, sir. Yes, so sir. AB whole power n क्या होता है? What is the law of exponent? AB whole power n is A power n into B power n. Okay. Yes, sir. So let A is equal to -1 and B equal to -1 and n is equal to half. Okay. Clear? Let us apply the law of exponent for these numbers. Okay. जैसा आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब पढ़े हैं, आपने क्या पढ़ा, सारे नंबर्स के लिए वैलिड है ना वो, दैट्स वैलिड फॉर ऑल नंबर्स, राइट? Yes, sir. सो ये तीन नंबर्स के लिए हम अप्लाई करके देखते हैं। -1 into -1 whole power half is equal to -1 power half into -1 power half, right? पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट है ना? Yes, sir. -1 into -1 कितना है? 1 Yes, sir. is equal to square root of -1 into square root of -1, right? Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना है? 1 1. is equal to square root of -1 तो I है ना, Yes, sir. into Yes, I. sir. So 1 is equal to I square. 1 is equal to I square कितना है? -1. -1. Yes, sir. तो I को आप जनरल नंबर जैसा अगर एज्यूम करके अगर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज किया तो यू आर एबल टू प्रूव दैट 1 is equal to -1, राइट? Yes, sir. इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती होना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. सो कौन सा स्टेप में गलती है इसमें? एट विच स्टेप वी हैव ए मिस्टेक? कहीं ना कहीं मिस्टेक होना चाहिए। सो AB whole power n is A power n into B power n, right or wrong?
right. अगर अगर ये राइट है तो ये प्रूव हो रहा है ना, क्योंकि बीच में सारे स्टेप्स तो जस्ट एप्लीकेशन है, मैं ज्यादा नहीं किया. So this was a contradiction. So आपके पास अभी दो रास्ता है. You have two ways right now. One is ये square root of -1 जो है, you can tell that this is meaningless. जो हम मीनिंग दिया है इसका आई करके, वो मीनिंग हम दिया ना. You can say that the meaning which I have given to square root of -1 is not valid. So I'll just stop saying that square root of -1 is I, and I'll leave it that, and leave this theory here, and x square plus 1 equal to 0 is an useless equation. ऐसा करके मैं छोड़ के जा सकता हूँ. यस सर. दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी होल पावर n इज इक्वल टू ए पावर n इंटू बी पावर n इज नॉट ऑलवेज वैलिड. कुछ कंडीशंस दे सकता हूँ. शायद ये इक्वेशन जो है शायद हर बार वैलिड नहीं है. देयर माइट बी सम केसेस वेयर दिस इज नॉट वैलिड. सो ऑयलर हैज प्रपोज्ड दैट ये थ्योरी जो है, ऑयलर मतलब सिर्फ ऑयलर नहीं है, एक बार ऑयलर ये कॉन्सेप्ट देने के बाद बहुत सारे मैथमेटिशियंस इस पे काम किया है. ओके तो आप जो नहीं है ना सर, ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू -1 और n का वैल्यू 1/2 है ना सर. सर तो वो कहाँ से आया? मैं फॉर एग्जांपल बोला हूँ. यूजुअली मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट जो है ना अलग अलग केसेस में ट्राई करते हैं. कहीं पैराडॉक्स मिल गया, समझ रहे? ठीक है, आप मान लीजिए आपको एक नया आइडिया आया, आपका दोस्त लोग क्या करते हैं, दोस्त लोग नहीं कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, they try to prove that you are wrong, ऐसा ना? यस सर. So बाकी जब ऑयलर ने ये प्रपोज किया है, बाकी मैथमेटिक्स को क्या लगता है ये हम क्यों नहीं सोचा है, राइट? हाँ सर. इसके बाद क्या होता है, जलसी आते हैं. यस. तो अगर आप उसका फेलो मैथमेटिशियन है तो आप क्या करने के लिए कोशिश करते हैं? You'll try to discredit him, right? Wrong. You'll try to prove that he is wrong. यस सर. तो आप गलतियां ढूंढते हैं ना, राइट? यस सर. सो ये गलती पकड़ में आ गया. सो ये गलती लेके ऑयलर के पास गया एंड वी से दैट ऑयलर यू आर रॉन्ग, आपका जो थ्योरी है वो गलत है, छोड़ दो इसको. ऐसा बोलता है ना, दैट्स व्हाट यूजुअली हैपेंस. यस सर. बट ऑयलर ने क्या किया, ओके सिर्फ इस केस में गलती आ रहा है ना, बाकी हर केस में तो कहीं गलती नहीं हुआ. यस सर. सो व्हाट ही हैज सेड इज, ओके अभी से मैथमेटिक्स में ए बी होल पावर n इज इक्वल टू ए पावर n इंटू बी पावर n, ये जो फॉर्मूला है, यूज दिस ओनली if both a and b are not negative. समझ रहे? This was a condition put on this formula. जो भी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स है ना, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में जब आप यूज करते हैं ये बी वाला, दो नंबर्स में जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं सर, तब तो कंसिस्टेंसी तब चेंज कर सकते हैं. हाँ, वो बोला है कि ये फॉर्मूला जो है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर देखा तो इफ यू अप्लाई इट फॉर रियल नंबर्स देन इट इज ओके. ओके, बट इफ यू आर अप्लाइंग इट टू अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डोंट अप्लाई दिस इफ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव नंबर्स. समझ रहे? यस सर. यस सर. सो दोनों नेगेटिव नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो गलत रिजल्ट आएगा. सो ये फॉर्मूला मत अप्लाई करो. बोल सकते हैं ऐसा कैसे चेंज करते हैं. अभी आप बोलिए कौन बोला है कि ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है? ये फॉर्मूला कौन दिया है? ऊपर से तो आया नहीं, ऐसा ना? यस सर. ये भी कोई ना कोई किया है ना. मे बी दिस ऐसा भी हो सकता है, दिस मे नॉट बी वैलिड फॉर ऑल नंबर्स, राइट? Yes sir. जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, नो वन हैज केयर टू चेक फॉर नेगेटिव नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने के बाद नेगेटिव नंबर्स के लिए चेक किया एंड इट वाज फाउंड टू बी नॉट वैलिड. सो इस फॉर्मूला को चेंज किया है. ओके,
So don't use loss of exponents containing two numbers if both numbers are negative. Okay? Yes, sir. हाँ सर. वैसे यूज किया. हाँ. यहाँ पे रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 फाइनली तो रियल नंबर ही बन जा रहा है. तो हाँ. फिर ये तो ऐसा हम कह सकते हैं कि रियल नंबर के केस में नहीं अप्लाई हो रहा है. नहीं, हम बोल सकते हैं कि देखिए इसको देख के हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर के लिए अप्लाई नहीं है. ऐसा है तो हमको छोड़ के जाना है, राइट? सो व्हाट ऑयलर हैज सेड इज, अगर हम ये फॉर्मूला को दोनों नेगेटिव वाला केस में अप्लाई करना बंद किया फॉर एग्जांपल, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. सबसे कम से कम वही करना है ना आपको, कम से कम चेंजेस करके यू हैव टू मेक इट वैलिड, राइट? ये ज्यादा से ज्यादा चेंजेस करना है. कम से कम. एम क्या होता है, अगर कुछ काम नहीं कर रहा है उसमें, मान लीजिए एक कोड है, एक कोड काम नहीं कर रहा है, आपका कंप्यूटर में जो कोड लिखा है वो काम नहीं कर रहा है. सो पूरा कंप्यूटर कोड चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं या कहाँ गलती है वो ढूंढ के वो छोटा सा पार्ट चेंज करते हैं? तो गलती ढूंढ के छोटा सा पार्ट चेंज, छोटा सा जो भी लॉजिकली करते हैं वही करते हैं लोग. ओके, यस सर. सो ये फॉर्मूला में समझ में आया क्या करना है? डोंट यूज द फॉर्मूला इफ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो यूज कर सकते हैं, दोनों नेगेटिव में यूज नहीं करना है. क्लियर? यस सर. जाएगा. सो एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए. सर कुछ भी नोट नहीं कर पाए सर, आप बहुत जल्दी उठा ले रहे थे. ओके, आप ये पेज किया या? हाँ सर, मैं बस स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, मैं बाद में लिख लूँगी. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हाँ सर, ले लिया मैंने. थैंक यू सर. ओके, सर ये बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में होगा ना, रियल नंबर्स में तो कभी नहीं होगा. हाँ, रियल नंबर्स में नहीं होगा. अगर n मान लीजिए स्क्वायर रूट्स नहीं है, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब आते हैं? स्क्वायर रूट्स में आते हैं. यस सर. अगर n अच्छा नंबर है तब कुछ भी कर सकते हैं. सर तो फिर रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर -1 तो सर -1 आ ही जा रहा है ना. तो नहीं, ये रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 आई स्क्वायर -1 आ रहा है ना. कॉम्प्लेक्स सेट के उधर जा भी नहीं सकता ना, क्योंकि वो -1 तो ऐसे ही आ जा सकता है. क्या है बेटा? आई स्क्वायर -1 आई इंटू आई लिखे है, बट हम लोग तो सर आई स्क्वायर नहीं भी लिख सकते ना, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर -1 अल्टीमेटली -1 ही होता है. हाँ, बट आप फाइनली +1 इक्वल टू -1 प्रूव हो रहा है ना. आप बीच में स्टेप्स अगर गायब करना है तो गायब कर लीजिए. ये प्रॉब्लम था है ना, +1 इक्वल टू -1 प्रूव हो रहा है ना. समझ रहे? ऐसा इजीली समझने के लिए मैं सब कुछ लिखा हूँ, हर एक स्टेप लिखा हूँ. ओके, यस सर. सो यहाँ तक समझ में आया? So this is whatever we have done till now is the introduction of complex numbers. Complex numbers का development कैसा हुआ, सारा समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. So now we'll go into Sir, the problem is mainly with Euler's formula. How can he change others' formulas? Okay, someone is asking this question. सब लोग दिख रहा है? Someone is asking, the problem is mainly with Euler's formula, then how can he change others' formulas? Maths में ऐसा नहीं होता है बेटा, others' formulas, others' formulas. एक फॉर्मूला मेरे थ्योरी के लिए काम नहीं कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ मेरे थ्योरी में वो फॉर्मूला यूज मत करिए. क्लियर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थ्योरी ऑयलर ने दिया है ना. अनुष्का समझ रहे? ऑयलर्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी ऑयलर ने दिया है, राइट? So, वो ये तो बोल सकता है ना मेरा थ्योरी में वो फॉर्मूला मत यूज करिए, वो तो बोल सकता है ना वो. Yes sir. Yes sir. He's not saying change this formula. What he's saying is don't use this formula for my numbers. समझ रहे? बट कंडीशंस अप्लाई कर दिया कि ओनली दिस. हाँ, मतलब don't use this formula for my numbers in this particular case. ऐसा भी बोल सकता है ना. Yes sir.
जब मेरे घर में आते हैं ये करो ये मत करो, बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है, मेरे घर में मत करो, समझ रहे? सर रूट अंडर -4 -9 ऐसे टाइप के नंबर्स का क्या हल होगा सर? नहीं, उसको भी आप ये फॉर्मूला मत यूज करिए, बाकी सब आप जैसा करते हो वैसा कर सकते हैं। उसने बहुत कुछ नहीं किया, ये इतना ही किया कि ये फॉर्मूला जो है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप दोनों नेगेटिव नंबर्स के लिए यूज मत करिए, समझ रहे? इतना तो बोल सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. बाकी जो भी है जैसा करते हो वैसा कर लीजिए। Now the first सर ये तो हाँ 1 इजिकल्स टू -1 प्रूव हो रहा है जब n इजिकल्स टू 1 हाफ हो रहा है। हाँ तो सर अगर मैं n इजिकल्स टू 1 किया तब तो नहीं होगा प्रूफ? तो नहीं होगा, इसलिए नहीं ऐसा करके इतना ये नंबर्स के लिए यूज मत करिए, इतना स्पेसिफिक नहीं बोल सकता ना, ऐसा केस में प्रॉब्लम आ रहा है, सो इस केस में यूज ही मत करिए मेरा फॉर्मूला, समझ रहे? Yes, sir. इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने का चांस है, सो उस तरफ मत ही जाइए, मना कर रहे हैं, ओके? So now the first numerical part of complex numbers is integer powers of I. -4 और रूट अंडर -9 क्या होगा वैल्यू? Root under -4 रूट अंडर -4 is 2i, ओके? क्योंकि रूट अंडर -4 का मतलब रूट अंडर -4 इंटू -1 इंटू 4 है ना? ओ हाँ सर ठीक है। एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, ऐसा तब आप यूज कर सकते हैं। कहाँ मना किया? सिर्फ दोनों नेगेटिव है तो मना किया, राइट? समझ रहे? ये सर ठीक है। दोनों नेगेटिव है तो मना किया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो मना नहीं किया, सो 2i लिख सकते हैं आप। सर -2i भी लिख सकते हैं? नहीं +2i लिखना चाहिए, क्योंकि वंस यू गो टू हायर क्लासेस ये सिंबल है, दिस डिनोट्स व्हाट इज दिस अ सिंबल फॉर? पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव दिस देखिए आपको स्टार्टिंग में दिस इज अ साइन ऑफ सिंबल फॉर स्क्वायर रूट है ना, गलत है, इट्स नॉट राइट, दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, दिस इज अ सिंबल ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये आपका बुक में नहीं होता है, ये डायरेक्टली आपको क्लास 11th में आएगा। सर नेगेटिव का कोई साइन है? नेगेटिव का साइन माइनस ऑफ स्क्वायर रूट, ये क्या है? ये नेगेटिव स्क्वायर रूट है, समझ रहे? Yes. इस मामले में बंगाल बोर्ड स्टेट सिलेबस अच्छा है। स्टेट सिलेबस में जब स्क्वायर रूट का सिंबल इंट्रोड्यूस होता है बचपन में, तभी बोला जाता है कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन हो, सीबीएसई में अननेसेसरी कंफ्यूजन है। स्क्वायर रूट में सर मतलब नेगेटिव स्क्वायर रूट में √4 का वैल्यू -2 होगा। देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4, व्हाट इज आंसर? Sir, 2. सर +-2 +-2 ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? only 2 दिख रहा है आपको, मतलब डिफरेंस दिख रहा है? यस सर। समझ रहे? ये -2 आना है तो क्या क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 किया तो -2 आएगा, ओके? देखिए एक और क्वेश्चन, x² इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू +or- स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है ना? यस सर। So what are the steps involved in this? x² इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू +or- स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है ना, राइट? यस सर। पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 i2 क्यों होगा? कहा ये वाला पूछ रहा है क्या?
नहीं सर, उससे नीचे जो आप क्वेश्चन कर क्या रहे ला? हो उसमें, यस सर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस और माइनस 2, क्योंकि मैं देखने में आई लग रहा था इस। नहीं प्लस और माइनस 2, क्लियर है? क्योंकि यहाँ मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं पूछा हूँ ना। यस सर। सर आप जो ऊपर में किए ना सर, रूट अंडर -4, सर उसका नीचे वाला स्टेप में रूट अंडर, सर अगर दोनों अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? दोनों नेगेटिव के लिए फॉर्मूला यूज मत करिए, दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड। ओके, हाँ सर। समझ रहे? तो ये क्लियर है? दिस इज अ सिंबल फॉर पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ओके, यस सर। ये तो समझ में आया ना? So now let me go to the next page. Okay. So the concept is integer powers of I. Okay. Now I to the power 0, I to the power 1, I to the power 2, I to the power 3, I to the power 4, I to the power 5, I to the power 6, I to the power 7. These powers are called integer powers of I. समझ रहे? Powers integers है, okay? I power 12, I power 13, I power 14, I power 15, so on. Okay? I power 0 क्या होगा? सर 1। एनी नंबर पावर 0 इज 1 है ना? यस सर। यस सर। I पावर 1 क्या होगा? I ही होगा। I स्क्वायर क्या है? -1। बाय डेफिनेशन इट इज -1। ओके, I क्यूब क्या है? देखिए I क्यूब को आप I इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। सो I इंटू -1, सर -1 माइनस आई I इंटू -1 माइनस I होगा। और 4 है, I पावर 4 को आप I स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। I स्क्वायर -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 प्लस 1। आप ये भी कर सकते हैं, आई क्यूब इंटू आई भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अलग अलग आंसर आ रहे तब कुछ गलती है, ऐसा -1। हाँ, बट आई क्यूब कितना है? -i इंटू आई, -i स्क्वायर, माइनस ऑफ -1, अभी भी +1 आ रहे, कैसे भी करिए सेम आंसर आ रहे। आई पावर 5 क्या? आई पावर 5 को आप आई पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं। आई पावर 4 तो 1 ही है ना। बैकग्राउंड बहुत आवाज आ रहा है सर। एक सर, ओके, आई पावर 4 1 है। यस सर। सो 1 इंटू एनी नंबर इज सेम नंबर। यस सर आई। तो ये भी आई है ना। पावर 6, देखिए कोई भी हायर पावर्स के लिए आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। पावर 4 तो 1 है ना। सो आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वही होगा ना। आई स्क्वायर -1। पावर 7 में से आई पावर 4 बाहर किया तो आई पावर 4 तो 1 है। सो आई क्यूब का जो वैल्यू है वही आ रहा है ना वापस। यस सर -i। आई पावर 8 अगेन 1 होगा। सर नहीं समझ में आया। यस सर 1 इंटू 1। देखिए मैं बोल रहा हूँ आई पावर 7 है, इसको आप आई पावर 4 इंटू आई क्यूब लिख सकते हैं ना। यस सर। आई पावर 4 तो 1 है ना। सो 1 के साथ आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करिए सेम नंबर आएगा ना। आई क्यूब भी आएगा, आई क्यूब तो -i यहाँ है ना, सो सेम नंबर आ रहे हैं यहाँ, राइट? यस सर। ऐसा भी देख सकते हैं। आई पावर 4 को आई टू द पावर 5 एक्सप्लेन कीजिएगा ना, 5 और 6। आई पावर 5 इज नथिंग बट आई पावर 4 इंटू आई। यस सर। आई पावर 4 कितना है? 1। सो 1 इंटू आई कितना है? समझ रहे? आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप यहाँ से यहाँ जाइए, आई पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करने से आई पावर 8 आएगा? आई पावर 4 से, ऐसा ना। बट आई पावर 4 कितना है? 1।
सो इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। यस सर। और 5 को i पावर 4 से, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया तो i पावर 9 आ जाएगा। यस सर। सो इसका भी वैल्यू i ही होगा ना। यस सर। यस सर। इसका वैल्यू -1 करेगा। हाँ, फिर 1 आएगा। i पावर i क्या होगा सर? वो बाद में देखेंगे। सर अब हम वही वाला साइकिल चल रहा है, 1i - 1i। हम इंटीजर पावर्स ऑफ i देख रहे हैं, ध्यान दे दीजिए। i पावर i जो है वो इमेजिनरी पावर्स ऑफ i, राइट? So no, we are not looking for i power i right now. We are only looking for integer powers of i. Okay. Yes. So आप देख सकते हैं सेम नंबर, ये चार ही नंबर्स आ रहे वापस, चार ही नंबर्स रिपीट हो रहे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. So no, 1i - 1 - i रिपीट हो रहे, राइट? Yes, sir. So Abhimanyu Paul, then what will be i power i? I power i का डाउट क्लियर हुआ? Yes sir. Okay. Now can I write a general formula? देखिए i का पावर्स में ये सारा जो है, ये पावर्स जो है 0, 4, 8, 12 जो है, ये 4 का मल्टीपल्स है ना? Yes, sir. So can I say something like this? i power 4 का मल्टीपल्स है तो हर बार 1 आएगा आंसर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये नीचे वाला जो पावर्स है 4 टेबल से एक ज्यादा है, सुनो 4 टेबल में जो नंबर्स है उससे एक ज्यादा है ना ये। Yes. इसको i पावर 4 का मल्टीपल्स +1 बोल सकता हूँ। Yes, sir. अब आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा? i आएगा, राइट? Hi. Yes, Yes, sir. sir. i पावर 4n + 2, देखिए ये जो है 4 का टेबल से 2 बड़ा है, राइट? ये नंबर्स पावर्स, राइट? तब आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। Yes, sir. i का पावर का 4n + 3 है तो -i आंसर है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? सो क्वेश्चंस ऐसा दे सकता हूँ मैं। हाँ सर ये सब अगर i का पावर हम लोग मतलब नेगेटिव इंटीजर लेंगे तब भी हाँ, चलेगा? हाँ तभी चलेगा। मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए एक्सप्लेन किया मैंने। सर तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि in the both sides of equation if the bases are same then powers are equal, तो 1 पे अप्लाई नहीं होता है तो i पे भी अप्लाई नहीं होगा ना? हाँ देखिए बेटा, ये जो रियल नंबर्स में कुछ फॉर्मूलाज जो है i पावर 0 = i पावर 4 हो रहा है ना, ऐसा? दिस इंप्लाइज 0 = 4 होगा? नो सर। देखिए कुछ अगेन देयर आर सम formulas which are not applicable in complex numbers. जब आप रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, you have to be very careful about the loss of indices. Okay? Sir, this does not apply on 1 सर also, ये रियल right? नंबर में भी नहीं होगा Sir 1 हाँ, पे सर। भी अगर यहाँ पे 0, 1 होगा तो नहीं होगा। एग्जाम्पल 1 पावर 5 = 1 पावर 4, so 5 = 4 भी नहीं होगा ना, समझ? हाँ सर। So there are some ये जो प्रॉपर्टीज है a पावर m = a पावर n implies m = n, ये प्रॉपर्टी के लिए there are some conditions, समझ रहे? Yes, sir. There will be some conditions where this formula will be applicable. Okay, वो conditions थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। So what are those conditions? देखिए ये यूजुअली नहीं बोलते बट आप सोच सकते हैं। एक है a should not be equal to +or-1, ऐसा, एंड a not equal to 0 भी होना चाहिए अगर रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो। रियल नंबर्स में ये 3 नंबर्स के लिए प्रॉब्लम आएगा। ओके, Yes, sir. रियल नंबर्स, दीज रियल नंबर्स में बोल रहा हूँ, इमेजिनरी नंबर्स में और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये नॉट इक्वल टू +or-1, +or-1 में प्रॉब्लम्स आते हैं ना। ओके, -1 होल पावर 4 = -1 होल स्क्वायर होता है ना।
यस सर। ये जो है +1 -1 0, ये तीनों नंबर्स में यहाँ प्रॉब्लम आएगा ये फॉर्मूला में, राइट? यस सर। यस सर। सो ये आप माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली एक्सप्लिसिटली, ये मान लीजिए सब कुछ देने लगा तो मैथ्स बुक जो है बहुत अभी भी बोरिंग है और बोरिंग हो जाएगा। समझ आ रहे? यस सर। यस फर्स्ट कंडीशन कहता है सर लास्ट ये वाला should be समझ में plus नहीं or आया minus सर। 1. हाँ बोलिए बेटा, एक एक करके। सर लास्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आया सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ a पावर m इज इक्वल टू a पावर n है तो m इज इक्वल टू n होता है ना, ऐसा ना? ऐसा ये यूजुअली यूज करते हैं ना हम क्वेश्चंस में, यस सर। राइट? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो देयर आर सम कंडीशंस। ये फॉर्मूला आप ब्लाइंडली हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द प्रॉब्लमैटिक पार्ट्स आर, अगर a 1 है तो a -1 है तो a 0 है तो दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 पावर 6 इज इक्वल टू 1 पावर 7 है। आप 6 इक्वल टू 7 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। तो ये कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं ये तीनों नंबर्स नहीं हो सकते इस फॉर्मूला एप्लीकेबल होने के लिए, ऐसा ना? यस सर। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आई के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिसमें ये अप्लाई नहीं होता। हाँ, हो सकता है। वही बोल रहा हूँ, वो सारा अभी हम डिस्कस नहीं करते। वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो केसेस आप खुद से समझ में आ जाएगा आपको। समझ रहे? ओके सर। क्योंकि ये सारा अगर लिस्ट करते जाओ तो बहुत टाइम लगेगा और बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। क्लियर? अनुष्का, इज देयर एनी सेट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स? होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बड़ा सेट होता है। लाइक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखिए। वंस यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अपने से आपको बड़ा नंबर्स लिख सकते हैं, अपने से लिखिएगा। ओके, आई डोंट नीड टू टेल यू। पहले ये समझिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो आई पावर पॉजिटिव इंटीजर्स आपको समझ में आ रहे हैं? यस सर। सो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आई पावर 273 चाहिए आपको। द बेसिक लॉजिक इज दैट आप आई का पावर से जितना भी फोर्स है आप निकाल सकते हैं। यू कैन रिमूव एज मेनी फोर्स एज पॉसिबल, क्योंकि आई पावर 4n कितना है? 1 है ना? यस सर। सो आई पावर 273 को आप आई पावर 272 इंटू आई पावर 1 लिख सकते हैं। यस सर। ये 272 जो है वो 4 का मल्टीपल है ना? यस सर। सो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिंपली 1 इंटू आई इज आई, हो गया। यस सर। सो आई का पावर से आप जितना भी फोर्स चाहिए उतना फोर्स आप निकाल सकते हैं। क्या? यस सर। यस सर। सो आई पावर 272 1 है, राइट? यस सर। सो मान लीजिए आई पावर -5 है फॉर एग्जाम्पल। जैसा ऊपर वाला थियरी के यूज करके, क्या है बेटा? I to the power 272 into I to the power 1 सर आपका 1 होगा ना, इक्वल्स टू 1 होगा, आप आई लिख दिया। नहीं, आई पावर 272 1 है, इसको इंटू आई है ना? ओ यस, इंटू आई इज आई, राइट? यस सर। तो इसका मतलब 4 का जितना भी मल्टीपल है सब 1 ही आप निकाल सकते हैं। हाँ, वो 1 है, आप निकाल सकते हैं आई का पावर से। सो आई पावर 997, आप 996 निकाल सकते हैं, ये भी आई हो जाएगा। यस सर। 996 डिविजिबल बाय 4। आई पावर 999, ठीक है, 996 आप निकाल सकते हैं, आई क्यूब बचेगा विच इज माइनस आई। ओके, यस सर। यस सर। सो आप आई का जो 4 का मल्टीपल्स है पावर्स
वो आप क्यों निकाल पा रहे हैं? क्योंकि i पावर 4n इक्वल टू 1 है, राइट? यस सर। चलो यस सर। सो आप लॉजिकली ये भी बोल सकते हैं i पावर 4 का मल्टीपल्स जैसा आप निकाल सकते हैं वैसा आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। Yes. पावर -5 को आप i पावर 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यस क्योंकि i पावर 8 भी 1 है ना। यस Yes, सर। sir. तो क्या हो जाएगा? i क्यूब हो जाएगा which is -i। Yes, sir. सो Yes. नेगेटिव पावर्स को भी आप सफिशिएंट पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करके 4 का मल्टीपल का आप पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करके आप आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ रहे? सर ये Yes. कैसे किए एक बार हाँ, समझा सर। देंगे? ठीक है, i पावर -5 है ना, इसको पॉजिटिव करना है मुझे। तो जैसा Yes, i sir. का अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो ये तो 1 हो जाएगा ना। यस सर। तो 1 से आप मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। नो सर। सो i पावर -5 इंटू i पावर 8 किया तो वो i पावर -5 ही होगा ना उसका वैल्यू। यस सर। i पावर -5 इंटू i पावर 8 i क्यूब हो जाएगा। यस। इसका मतलब क्या है? i पावर -5 इज सेम एज i क्यूब व्हिच इज -i। ओके समझ सर, रहे? अंडरस्टूड। i पावर -427 है फॉर एग्जांपल। सो इसको मैं क्या करता i पावर +428 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 428 तो 4 का मल्टीपल है, राइट? यस सर सर। इसके पहले वाला से समझा देंगे सर, i टू द पावर -5 वाला। देखिए आप कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा ना। नो सर। सो i का पावर 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। यस सर। सो i पावर -5 को मैं इफेक्टिवली 1 से ही मल्टीप्लाई किया ना। यस सर। यस सर So- ये -427 तो आई हो जाएगा ना। Yes, ठीक है, sir. ये समझ में आ रहा है? सेपरेटली आई एम मल्टीप्लाइंग विद i पावर 8 Yes, sir. तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। सो i क्यूब हो गया -i हो गया। ओके, यस सर। सो i पावर -427 सो मैं i पावर 428 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि 428 इज मल्टीपल ऑफ 4 डिविजिबल बाय 4। ऐसा ना। सो i पावर 1 हो गया व्हिच इज इक्वल टू i। Hi. यस सर। यस तो वैसा करके आप पॉजिटिव पावर्स हो या नेगेटिव पावर्स हो ये बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके यू कैन फाइंड पावर्स ऑफ i। ओके, Yes, sir. यस सर, कॉपी थोड़ा नीचे दिखाइए। सर लिखेंगे। ये सर डन सर, डन सर। ओके। इसका आंसर क्या होगा? i प्लस 1/i होल स्क्वायर। सर वो 1/1 है। i प्लस 1/i। सर 0। ओके इसका आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि 1/i क्या होगा? 1/i को आप ऐसा भी कर सकते हैं 1/i इंटू i/i कर सकते हैं, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस सर। Yes, sir. सो i इंटू i कितना है? -1 which is equal to -i. Yes, sir. So 1/i will be same as -i. So i minus i whole square. हाँ? यस सर। 1/i कहाँ से है? क्वेश्चन में है ना, i प्लस 1/i होल स्क्वायर। यस सर। फिर So 1/i 1/i is equal to -i. So I minus i whole square, 0 whole square is 0. Clear? Yes, sir. यस सर। यस सर। So आज जो हुआ समझ में आया सब कुछ? यस सर। यस सर। So let us stop here for today. ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। Good थैंक यू night. सर, बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। Good night. पेज अच्छे से दिखाए ना सर, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। क्या बेटा कुछ बोल रहे हैं क्या? गुड नाइट सर स्क्रीनशॉट कर लेंगे सर, पेज तो दिखाएं। पूरा दिखाना है क्या? पूरा पेज? हाँ सर ठीक है, हो गया।
हो गया सर, ठीक हो गया? ओके ओके बेटा। बाय सर, गुड नाइट बाय सर, थैंक यू Okay सर। sir, bye sir, thank you sir. बाय सर, थैंक यू।